Hello, everybody, and a very warm welcome to all of you back again on our Unacademy platform YouTube channel. And this session that you are right now into is being conducted by your educator, Miss Vani Gandhi. You all pretty well know me by now. सब जानते हो मुझे. Alright. I teach for class 11, class 12, CA Foundation, अलग अलग classes चलती रहती है Unacademy पे, YouTube पे, हमारे YouTube पे. You all have been connected with me Telegram से, Instagram से, हर जगह से. तो this is completely a fun way, जो आप लोगों से बात करना, interact करना, हर बार आपको अलग अलग चीजें बताना, आपके डाउट सॉल्व करना. That's been an amazing journey so far. And students, by the time we are recording this, we are already at the end of May. Okay, Sunday है, 31st May है, and we completely don't know कि what the lockdown is going to bring up आगे अपने लिए, क्या announcements होने वाली है, क्योंकि 31st तो आ गया है, and now let us see what June has got for us. But one thing before starting the session जो मुझे आप सबसे बतानी थी, शेयर करनी थी, कि कई दिनों से ये चीज़ चल रही थी कि हम हमेशा वही चीज़ क्यों देखते हैं. Why do we look at that aspect of our lives that we don't have? क्यों हमारी दुनिया उन चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व होती है जो हमारे पास नहीं है. Rather, why can't we focus on the things that we have? लॉकडाउन ने ये एक चीज़ हमें बहुत बखूबी बढ़िया समझाई है. It has told us very precisely and nicely and made us understand that in the practical life कि why it is important for us to be satisfied and content with what we have rather than cribbing for what we don't. इतना सब कुछ है तुम्हारे पास but what that you don't have, वो दो पल सुकून के तुम्हारे पास अगर नहीं है तो वो मतलब क्या है जिंदगी का. If you are not able to spend time with your family, if you are not able to help any poor and needy one, if you are not able to fulfill your responsibility as a member of the society or of your family, or if you are not able to keep well with your health, क्या काम का इतना workload, इतना stress, इतना this and that? Nothing, right? So rather than focusing on the things that we don't have, let's give our minds to something that we already have with us. जो हमारे पास है, that we own, that is ours, जो हमसे कोई छीन नहीं सकता, जो हमारी खुद की qualities है. Come, let's focus more on that. Alright. And with this, you must have already seen the title. थोड़ा बहुत उसी से आपको clear हो गया होगा. Every day you all ask me कि मैम मेरा कुछ तो हो गया but we don't get adequate time to discuss that in the plus batch course क्यों, because obviously you need to like deliver the lessons also आगे 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 आपको करना ही जाना रहता है वहाँ पे भी batch course में. You all know कि 20 days of the batch course have already got over and the response is so amazing guys. 11th and 12th दोनों का ही impact and accounts and business studies I take up both over there. तो the journey has been so amazing. I mean 11th का तो हमारा ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है टॉप एजुकेटर्स में भी. एंड पॉइंट इज कि आप जब चीज़ों को समझोगे, एनालाइज करोगे, तभी यू विल अंडरस्टैंड कि वेयर इज योर प्रॉब्लम एंड कहाँ दिक्कत एग्जैक्टली आ रही है आपको. लर्निंग इज नॉट एवरीथिंग. After the learning, you also need to imply what you have learned. And after implying that, you also need to analyze where you exactly went wrong. Correct? Correct na bachcha log? Chalo. So, today what we are going to do over here is, remember we just had on May 30th a mega quiz for 11th standard का accounts. And majority of you all are asking, ma'am, ये question समझा दो, वो question समझा दो, यहाँ पे doubt है, ये है, वो है. And I told you we will be taking up in the next accounts class. ये वो है. Saturday को आपने सारी exams दे दी and Sunday don't worry, we are not going to learn anything new today. I told you Sunday is something that you can relax on. जो मतलब पूरा वीक में किया है उसको रिकवर करना है. इफ यू हैव मिस्ड आउट ऑन समथिंग डू दैट. अगर इफ देयर इज एनीथिंग जो आपको डाउट्स वगैरह है तो फिगर आउट देम योरसेल्फ, रिवाइज एवरीथिंग, समराइज एवरीथिंग. नोट्स नहीं बनाए हैं तो वो बनाना स्टार्ट करो. मेरे बैच कोर्स के स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. ओके.
And so this mega quiz was also taken for y'all based on the whole May month का whatever we studied. Okay, like जब से बैच कोर्स स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक how much ever we studied उसके ऊपर this quiz was based for you. I specifically did not take the chapter second. I told you all कि उस पर हो सकता है, but that was all for your preparation. रखा हमने फर्स्ट पे ही है. Okay, so don't worry about that. Let us go back and see कि chapter वन पे क्या क्या quizzes थे आपके लिए and how we are going to deal and understand with all of them. चलेगा? चलो. So let's learn live with the mega quizzes. ऑन द स्पॉट प्लेटफॉर्म में से मैं आपको जैसे दिख रहा है मैं वैसे ही मोड पे आपको बताऊंगी क्विजेस वगैरह. ओके, चलो देन पब्लिक. हे लेट अस ड्रॉ मैन. हाँ, here it is. Last time remember ना we have done all business studies का NCERT questions of chapter 1 as well, तो इसका भी करना बाकी है. By the way, just in the comment section you need to tell me कि whether you like this activity of discussing the mega quiz answers over here essay or not, because this will save our time in the batch course. We can purely study more as well there, and your doubts and everything can get cleared over here, so this will be like an additional lecture to you all. And the ones who are watching this for free, who are not yet plus subscribers, can also decide कि how this can help them in the learning ahead. And the ones जो कश्मकश में है कि बाबा बैच कोर्स ले ना ले, सब्सक्रिप्शन ले अनअकैडमी के पर या ना ले, एवरी प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग धीरे धीरे आपको समझ में आ ही जाएगा कि हाउ आई टीच, माई टीचिंग मेथड, हाउ वी डील विद क्वेश्चंस एंड हाउ वी गेट द सॉल्यूशंस. तो चलिए, लेट्स स्टार्ट and let's understand what we are gonna do with this whole concept of the mega quiz. Okay, chalo, where you can see I've opened an academy. You can see your mega quiz class 11 course on building concepts of accountancy. This was the one जहाँ पे हमने first chapter किया complete and थोड़ा second chapter also we completed. तो यहाँ पे I just randomly not even selected one answer. मैंने सीधा फिनिश टेस्ट करके मैं आगे गई सॉल्यूशंस के लिए. चलिए लेट्स व्यू द सॉल्यूशंस. ओके, एंड सॉरी अगर कोई नॉइज डिस्टर्बेंस आ रही है तो बिकॉज इट्स संडे एंड यू कैन नॉट मेक एनीबॉडी वेट विद द कंस्ट्रक्शन एंड हैमरिंग एंड जो सब हो रहा है वो. एंड बिफोर दैट बाय द वे हियर आर आवर लीडर्स. ओके, देखिए, these are the ranks. Krati Jain 29 on 30, Kanish Karyan 29 on 30. Congratulations both the toppers. Then we have Nilesh Jain with a 28 on 30, Sneha Gusai with 28 on 30. Then Harsh Singh and Palak Gupta together on 26 and 26. They stand the 5th and 6th respectively. So you can see first, second, third position तीनों पे मतलब tie ही है, दो, but they have been distinguished with the time वाला factor. तो वो भी मैटर करता है अनअकैडमी के मेगा क्विज में कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन एंड डूइंग इट करेक्ट. टाइम फैक्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. दिस विल नॉट जस्ट हेल्प यू फॉर योर 11th and 12th स्टैंडर्ड बोर्ड्स. दिस विल हेल्प यू पर्टिकुलरली इन ऑल योर एग्जाम्स अहेड. जो भी एंट्रेंस टेस्ट आपने देनी है, जो भी करना है, यहाँ के बाद आगे जाकर आपको अगर सीए बनना है तो यू हैव टू गिव सीए फाउंडेशन. And CA intermediate and finals also have MCQs, so वहाँ पे भी time is a very important factor. If you are planning to go for MBA, you will have CAT, MAT, NMAT, then all the other. अगर महाराष्ट्र specific college चाहिए तो CET, then ATMA है, many exams that you all give NMAT वगैरह. तो and also college specifics भी होती है symbiosis की, अगर आपको अलग से होगी एग्जाम. अगर आपको इसमें जाना है, आपके टाटाज में जाना है तो टिस होती है. ओके, सो देर आर वेरियस डिफरेंट एग्जाम्स जो हर एक कंडक्ट करते हैं एंड हर एक का पैटर्न इज क्वाइट डिफरेंट. नाउ व्हेन द क्वेश्चंस कम अप टू सीईटी काइंड एटमॉस्फियर, सीईटी जैसा अगर आपका एमबीए का एंट्रेंस, तो वहाँ पे यू नीड टू डील विद 200 क्वेश्चंस इन जस्ट 150 minutes. 200 questions in just 150 minutes. मतलब it is very obvious कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलता and the solving time is so much ज़्यादा. वहाँ पे there is no negative marking, but when you come to CAT type exams, the difficulty level is इतना high and you get 100 questions and you get 3 hours, मतलब 180 minutes. So per question you get 1.8 minutes.
ओके टकाटक. बट द प्रॉब्लम देयर इज यू हैव नेगेटिव मार्किंग. 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो जाता है. मतलब गलत किया वो तो गया, ऊपर से गलत किया इसके लिए पेनल्टी मिली वो अलग. तो ये जो मेगा क्विजेज है ना, दे काइंड ऑफ हेल्प यू फॉर ऑल दीज एटमॉस्फेयर बाय मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि तुम कितना टाइम ले रहे हो किसी चीज को समझने में. एंड दैट विल आल्सो हेल्प यू टू प्लान आउट योर फुल बोर्ड पेपर एज वेल. ओके, ये स्ट्रैटेजीज है. So these are the top three winners of a mega quiz which happened. Okay, for your course building concepts of accountancy. Okay. Next we have Arnav. देखो 25 पे तो 4 लोग हैं. See public. The competition just see. Arnav, Adarsh, Sahil and Muskan all on 25, 25, 25 each. Arnav did it in 8 minutes. तो देखिए अति घाई संकटात नहीं. हाँ, ज़्यादा जल्दी आपको कभी कभी यू नो ट्रबल में भी डाल सकती है. तो यहाँ पे दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल कि इन्होंने किए तो 8 मिनट्स में, बट देन हो सकता है शायद थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा देते, इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं करते, तो दे कुड हैव स्कोर्ड अ लिटिल बेटर. क्योंकि ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर आपका स्कोर है, उसके बाद आपका टाइम है. स्कोर है तो सब है. दैट इज द सिनेरियो हियर. ठीक है. चलो तो 10th 11th पे भी ये लोग हैं. सो यू कैन ऑल सी कि कितना कितना क्या क्या यू नो हियर वी हैव ऑल द टॉपर्स. तो चलिए, कैन वी सी अ टेस्ट. हाँ जी. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. आई गेस आप सबको दिख ही रहा होगा. शायद आई इंक्रीज द स्क्रीन. हाँ, इतने में तो आई गेस एवरीबडी कैन सी एवरीथिंग हियर एंड यू कैन आल्सो साइमल्टेनियसली सी द टॉपर्स. Okay. So here, the point here is the next question. The first question that you can see in the mega quiz is choose the most appropriate alternative. कि they are given the one word, एक word दिया है, एक item दिया है, and you need to select कि इनमें से ये कौन से इसमें fit बैठता है. Current, non-current asset, current liability, non-current liability. We have all learned this in that chart. एक chart बताया था मैंने फिक्स्ड एसेट्स का वगैरह. जो ऑल एसेट्स में एक था, लाइबिलिटीज का चार्ट था, तो एसेट का चार्ट, लाइबिलिटी का चार्ट, एंड वी हैड लर्नड एवरीथिंग ओवर देयर. करेक्ट. तो दिस पार्ट इज पर्टिकुलर टू दैट एरिया. ये जो क्वेश्चंस है ना, ये वाले, ये. एंड एग्जाम में कहीं ना कहीं इन द फर्स्ट यूनिट्स एंड इन द फर्स्ट सेम्स इस वाले क्वेश्चंस है ना, दे डोमिनेट योर क्वेश्चन पेपर. लाइक यू विल actually find them. You need to either segregate them. कोई भी फॉर्म में आ सकता है. odd man out, fill in the blank, any criteria. वन वर्ड आंसर बोल दो, कुछ भी, in any form, multiple choices, multiple options to select, alternative वगैरह फॉर्म में you can have these. Okay. तो प्लीज कीप योर कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर बच्चा लोग, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट. यहाँ पे तो चलो आपको सेफ रखा है. दे हैव ओनली टोल्ड यू करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज. सोचो अगर दे आर गिविंग यू एसेट्स में ऑल द बाइफोकेशन, कि चलो वी ऑल नो मशीनरी इज एन एसेट. ठीक है, मशीनरी इज एन एसेट, वी ऑल नो दैट. बट व्हाट इफ एसेट के अंदर दे आस्क यू टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट, कौन सा टाइप का है एसेट, ये फिक्स्ड एसेट, ये वो. तो हाउ डू यू राइट दैट, कौन सा बाइफर्केशन एग्जैक्टली इसको बेस्ट फिट होता है. यू ऑल्सो नीड टू डू दैट एज वेल. तो कभी भी ध्यान रखना कि व्हेन यू आर स्टडिंग एनीथिंग, स्टडी इट इन द मोस्ट अटमोस्ट डेप्थ. प्योर पढ़ लेना. ओके. चलो 1 मिनट जस्ट लेट मी चेक हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है. 13:58. ओके चलो. हाँ जी. सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स मशीनरी. करेक्ट. मशीनरी है हमारे यहाँ पे भाई साहब जी. एंड लेट अस सी मशीनरी क्या बोल रहे हैं हमको, व्हाट दे आर एग्जैक्टली फोकसिंग ऑन फॉर ऑल ऑफ अस. ओके. तो फर्स्ट मशीनरी का क्या है ऑप्शंस, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी. मशीनरी जैसा एसी है वैसे ही मशीनरीज भी होती है आपकी. लाइक लेट्स से बिजनेस है आपका. ओके. तो वहाँ पे प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है, तो वहाँ पे आपने क्या कर रखा है, यू हैव गॉट द मशीनरी, पूरा प्लांट एंड मशीनरी दैट यू सी ना, होल बिजनेस में मशीनरीज है. नाउ टेल मी, ये आपका एसेट है कि लाइबिलिटी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पैसे देके उसको खरीदा है. करेक्ट. सो दिस इज व्हाट योर एसेट.
First thing clear. Second thing, current या non current. Now when you are establishing any machinery at your place, क्या तुम उसे सिर्फ एक साल के लिए रखोगे? Will you just keep it for 1 year? Obviously not. बिजनेस आप कभी जनरली सोचते नहीं हो कि एक साल में ही बस खत्म हो गया, बिस्तर लो और बांध के निकल जाओ. You won't do that. Businesses, when you are investing so much in that machinery, you are generally trying to keep it for a long term period. इस साल से प्रोडक्शन नहीं होगा, या ऐसे नहीं है कि इस साल प्रोडक्शन कर लिया एंड देन यू कैन हैव इट फॉर द नेक्स्ट 10 years. ऐसे नहीं होता. कंटिन्यूस प्रोडक्शन होते रहता है, तो कंटिन्यूस मशीनरी इज ऑल्सो बीइंग इन यूज. सो देयरफॉर मशीनरी क्या है? नॉन करंट एसेट. करंट क्यों नहीं है? क्योंकि इट इज नॉट बीइंग यूज लेस देन 12 month का पीरियड. इट इज नॉट फॉर रीसेल इमीडिएट. इट इज the benefits of this are going to be derived for more than 12 months का duration. मतलब more than 1 year we are going to use this and we are going to generate revenue out of that. So for that purpose you all can see it is a non-current asset. ठीक है, चलो. Now let's go to the next second question. Which stakeholder group would be most interested in the VAT and other tax liabilities of the firm? अभी they are saying you कि बाबा tell us which of the following, ये जो एक stakeholders group दिया है. Remember we had also done key holders, key stakeholders. मतलब who all can be the users of the financial information of your accounting books. Okay, who all would want accounting? कौन कौन है जिसको इससे benefit होगा? Who all will be interested in it? आपके अकाउंट्स में कौन किस रीजन की वजह से इंटरेस्टेड हो सकता है. तो दिस इज नाउ सी एप्लीकेशन बेस्ड. यू नीड टू कनेक्ट दिस कॉन्सेप्ट विद योर रियल लाइफ एंड आपको दोनों में से बीच में यू नीड टू फाइंड आउट कि चलो बाबा टेल अस बताओ हमें कि इन दोनों में एग्जैक्टली कनेक्शन क्या है एंड विच वन वुड बी मोर फेवरेबल. ओके, चलो. So they are saying VAT and other tax liabilities. Now see the options. Even before the options, you already know कि it is the tax authorities, the government वगैरह उन लोगों के लिए है. But see the options as well. Social responsibility groups, governments and other regulators, lenders, management. अभी lenders यानी आपके creditors, आप कितना भी tax क्यों ना भरो, technically सबसे ज़्यादा उनको interest नहीं होने वाला है इसमें. Correct? Why? क्योंकि उनको खाली मतलब किस चीज से है कि you are not taking more of borrowings वगैरह and you are having enough assets, enough liquidity that you can pay them back. Lenders का इतना ही रोल प्ले है आपकी स्टोरी में. देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स, उनका एरिया क्या है कि आप एथिकल मैनर में सब कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. वेदर यू आर कैरिंग आउट योर बिजनेस प्रॉपरली, आप प्राइजेस वगैरह बेटर चार्ज तो कर रहे हो ना, वेदर यू आर कीपिंग योर एम्प्लॉइज एंड योर स्टाफ एंड एवरीबडी गुड. तो ये भी ऑप्शन कैंसिल. द नेक्स्ट यू हैव इज गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटर्स एंड मैनेजमेंट. Now, very obvious, you will say कि ma'am management is also like interested in the tax liability and government is also interested. But management से भी ज़्यादा सी management हर चीज़ में interested होने वाला है majority. But government है जो इकलौता है who will be highest interested in your tax VAT आपका, then GST goods and service tax वगैरह अभी जो है recent वाला that and जो भी आपकी other tax liabilities वगैरह है, all of them the government authority and the tax regulators वगैरह जो tax authorities वगैरह है, they will be highest interested just in that part. Correct? तुम business कितना का भी करो, you do whatever you want. उसके बाद उसको calculate करके the VAT that you will get, the tax that you will get, वो तुम liability तुम्हारा है, वो तुम्हारा liability first of all आना and then you paying it. Tax authorities का main point of focus is there. Okay, so therefore option 1 is the most interested people you need to see, right? Both are interested, but this is more interested. Therefore, government and other regulators is the correct option. I hope you are enjoying this. The next question is, which of the following is not a business transaction? इनमें से कौन सा business transaction नहीं है? Read the question always carefully. नहीं बोला है तो नहीं को ही देखना है. नहीं तो बच्चा भी like बिजनेस ट्रांजैक्शन, हाँ ये भी है ये भी है ये भी है ये भी है. मैम क्वेश्चन इज गलत. नो, रीड द क्वेश्चन पहले प्रॉपरली. दे आर सेइंग ऑफन दे विल आल्सो कीप यू कंफ्यूजिंग ऑप्शंस. ये है कि ये है, ये है कि ये है, ये है कि वो है.
So keep in mind, first read the question carefully. What they are saying, not a business transaction. So देखो, and many of you all get confused with the both and both of these and none of these. In मतलब is a business transaction not a business transaction में तो वो गफला मत करना. Okay. The first is bought furniture of rupees 10,000 for business. 10,000 का furniture लाया. Let's say I'm bringing a table, a cupboard or something for my business. So 10,000 का I'm bringing that up. तो हो गया business transaction for business ही बोला है. Correct. Next, paying salaries of employees 5,000. You are keeping employees also in your business, so उनको you are paying salary of 5,000. Very obvious, that will also be a business transaction. Although you will be like, man, customer से तो लिया या दिया नहीं है ना, but economic activity तो है यहाँ पे, business transaction तो है, correct? You are paying the employees and the payment is of 5,000 and the employees are receiving it. Next, देखो, paid sons fees, दो confusing options now here. Paid sons fees from her personal bank account rupees 20,000 and paid sons fees from the business rupees 2,000. कुछ भी हो. See, now the point here is क्या आप बोलोगे मैम ये तो ड्राइंग्स हुआ राइट. सन फी फ्रॉम द बिजनेस, सन का मनी दिया है तो बिजनेस का तो खर्चा है नहीं. लाइक ऑल्दो हमारे बिजनेस में से हम दे रहे हैं बट दैट इज नॉट रिलेटेड एग्जैक्टली टू द बिजनेस. बट बच्चा लोग ड्राइंग्स वाला पार्ट तो हो रहा है राइट. यहाँ पे तो वो भी नहीं हो रहा है इन द थर्ड वाला पार्ट. सी, पेड सन्स फीस फ्रॉम अ पर्सनल बैंक अकाउंट, अपने सेविंग्स अकाउंट में से. बिजनेस का तो करंट अकाउंट खुलेगा नॉर्मल है. दिस इज प्रैक्टिकल थिंग, प्रैक्टिकल चीज जो यू आर सी, नॉट द बुकिश नॉलेज. दिस इज एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज योर. रोज में आप देखते हो आपका जनरली आई यू सी सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट. बिजनेस का करंट अकाउंट होता है आपके बैंक में. आपका अकाउंट वाला अकाउंट नहीं है, जर्नल एंट्री वाला अकाउंट नहीं. बैंक में व्हेन यू ओपन एन अकाउंट, बैंक अकाउंट, तो सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट होता है. तो सेविंग्स अकाउंट इज फॉर द पर्सनल इंडिविजुअल एंड जो बिजनेसेस है उनके करंट अकाउंट खुलते हैं. तो नाउ व्हाट दे हैव सेड कि उसके अपने पर्सनल अकाउंट में से उन्होंने दिया, मतलब अपने अपने पर्सनल अकाउंट में से उन्होंने जाके तो 20,000 है वो पे किया. So this is something happening outside of the business, not for business purposes. Business का कोई connection है ही नहीं यहाँ पे. So how will that be a business transaction? इसलिए दिस इज द मोस्ट करेक्ट ऑल्टरनेटिव ओवर हियर दैट यू कैन सी. ये नहीं होता है क्यों? क्योंकि ये ड्राइंग्स तो हो रहे हैं ना, मतलब इट इज लाइक शी इज गेटिंग दैट मनी आउट फ्रॉम द बिजनेस. ये भी बिजनेस के हिसाब से तो ट्रांजैक्शन ही है ना कि बाबा द ओनर इज लाइक ये बिजनेस है, ये ओनर है, तो दिस ओनर इज टेकिंग आउट मनी फ्रॉम योर बिजनेस. बिजनेस के लिए तो ट्रांजैक्शन है ये, इट विल गेट रिकॉर्डेड. ये तो कुछ रिकॉर्ड होना नहीं है. बाहर का बाहर, सन भी बाहर का, बिजनेस का तो है नहीं. ओनर का है, बिजनेस का है नहीं सन. सो दिस इज ऑल्सो बाहर का. 20,000 इज ऑल्सो बाहर का. सॉर्टेड, सॉर्टेड फॉर लाइफ. चलो, इसका भी दिस क्वेश्चन इज डन. नेक्स्ट, डार्क मोड ऑन यहाँ से नहीं होगा ना. वेट, चलो नेक्स्ट. मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव में अभी कौन आए हैं? सन्ड्री क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स आपके जब 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 क्रेडिटर्स आप नॉर्मल इसमें बिजनेस में देखते हो कि यू बॉट समथिंग फ्रॉम देम, आपने कुछ खरीदा उनसे, ओके, एंड खरीदने के बाद यू आर नॉट बीइंग एबल टू पे देम. आप बोलोगे कि भाई उधारी रख लो, करेक्ट. यू विल से कि बाबा आई गिव यू एंड पे यू आफ्टर 2-3 months. अभी कोई क्रेडिटर ऐसा तो है नहीं ग्रेट हमारे पास मोस्टली जनरली, ओके. योर थिंग्स आर ऑन जनरल बेसिस रादर देन यू विल बी लाइक मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोटा फैक्ट्री का वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इटसेल्फ इज एन एक्सेप्शन. एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है वहाँ पे. तो इट इज नॉट दैट यू विल सी लाइक मैम आई हैव वन क्रेडिटर who gave us the like अपना क्रेडिट पीरियड ऑफ लेट्स से 36 months. तो उसको कैसे फिर वो करंट कैसे हुआ वगैरह. तो दीज आर एक्सेप्शन. जनरल बेसिस पे आपको कौन देता है 2-3 साल का उधारी ऑफ रोज का ट्रांजैक्शन है. रोज का गुड्स आप बेच रहे हो, लाइक यू आर परचेसिंग, आपका बिजनेस चल रहा है, ग्रोसरीज का है या बोलो कुछ गिफ्ट आइटम्स का है. तो इफ यू आर, चलो आप यहाँ से बॉम्बे मार्केट या कहीं से भी यू आर परचेसिंग द थिंग्स, आपको लगता है वो आपको इतना इतना ईयर्स का देगा. The maximum period will be what? 2 months, 3 months, 4 months, 5 months. इससे ज़्यादा तो nobody will keep that turnover. Very rare cases.
तो इन दैट केस सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या हुआ है, ये इसी साल में आपको वापस रीपे करना है या इसी ड्यूरेशन में करना है, मतलब 12 महीने के अंदर करना है. यू हैव टू रीपे देम विद इन 12 मंथ्स. सो देयरफॉर ना दे आर करंट इन नेचर, ये फिक्स हो गया. अभी एसेट है कि लाइबिलिटी है, यू आर सपोज टू पे देम, दे आर नॉट सपोज टू पे यू. मतलब ना मनी आना नहीं है, मनी जाना है. जाना है, करेक्ट. जाना है मतलब अभी तक हमने दिया नहीं है, हम पे वो कर्ज है. वी ओव देम दिस मनी. ओके, हमें उनको वो जो भी मतलब अमाउंट है 10 लाख 20 लाख 20,000 10,000 जो भी है हमें उनको देना है. दैट इज व्हाट आर लाइबिलिटी. लाइबिलिटी हुई हमारी. ओके, तो करंट एंड लाइबिलिटी क्या हो गई, करंट लाइबिलिटी. ठीक है, चलो लेट्स रेज्यूम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कैश एट बैंक. अपना कैश एट बैंक ऑब्वियस है. बैंक कैश, कैश को कहीं भी हो, आपकी इन हैंड हो या बैंक में हो, कैश कैश होती है. करेक्ट. मनी इज मनी आफ्टर ऑल. अभी अगर ये फिक्स डिपॉजिट होता ना, तो दिस वुड बी लाइक एफडी. आपने कितने मंथ के लिए रखा है, डिपेंड्स ऑन दैट. जनरली पीपल कीप इट फॉर मोर देन 12 इयर्स, तो अलग सिनेरियो हो जाता. बट आपका नॉर्मल कैश एट बैंक आप जो बिजनेस में रख रहे हो, ऑब्वियसली अकाउंट ही करंट होता है वो, तो हाई चांसेस लाइक यू नो कि यू आर गोइंग टू यूज इट कैश रेगुलरली, या आप उसको रेगुलर में यूज ही कर सकते हो. आपने रेगुलर यूज के लिए रखा है. कोई कैश अपने इसमें नॉर्मल अकाउंट में इसलिए नहीं रखता कि भाई चलो बिजनेस में कि बाबा दिस कैश हैव केप्ट सो दैट आज के बाद 10 साल के बाद मैं इसको यूज करूंगा. व्हाई विल यू डू दैट. आप जाके कहीं इन्वेस्ट कर लोगे, राइट. शेयर्स ले लोगे, इन्वेस्टमेंट कर लोगे, कहीं पे कुछ प्रॉपर्टी खरीद लोगे उससे, जिससे योर पैसा गेट्स डबल्ड, और एटलीस्ट नॉट डबल्ड, यू गेट सम इंटरेस्ट ऑन दैट. पागल जैसे यू वॉन्ट कीप द मनी ऐसे लाइन ना, ऐसे गड्डी 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 नोटों की गड्डियां लगा दी. यू वॉन्ट डू दैट. सो कैश एट बैंक इज वेरी ऑब्वियस करंट इन नेचर है. एंड अगेन एसेट या लाइबिलिटी आपका मनी है आपके यहाँ पे, तो एसेट ही हुआ. पैसा थोड़ी जाके आपको ले बाबा दिस इज माई हार्ड एंड मनी, दिस इज द कैश दैट आई एम हैविंग राइट नाउ, बट ये कैश ना आई एम सपोज टू पे एनीबडी. तो ऐसा थोड़ी होगा ना. आपका मनी दैट यू आर यूजिंग वो तो आपका है. सो कैश एट बैंक इज ऑफ कोर्स अ करंट एसेट. नेक्स्ट, गुडविल. व्हाट इज गुडविल मैम. गुडविल, गुडविल मतलब द इमेज एंड रेपुटेशन एंड यू नो द गुड स्टैंडिंग मार्केट पोजीशन जो आपका है, मार्केट में जो नाम है आपका. ओके, दैट इज गुडविल. मतलब अभी फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस आपका कल्याण ज्वेलर्स भाई अमिताभ बच्चन जिसकी ऐड करते हैं वो. ओके, अभी अन अकेडमी है, तो अन अकेडमी इज हैविंग इट्स ओन गुडविल. ओके बाबा, दे आर प्रोवाइडिंग फ्री लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, सो मेनी एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स ओवर हियर. हम सब यहाँ पे है, हमारी भी गुडविल बढ़ रही है. देयर गुडविल इज आल्सो इंक्रीजिंग. एंड हो नहीं, वो गुडविल तो है उनकी. करेक्ट. You have one shop which is just started एक साल से, and you have one shop which is running since last 30 years. Obviously, your first preference majority of the times can be that 30 years वाला, because you have trust on them. आपको उन पे एक भरोसा है कि पापा 30 साल से ये यहाँ पे है, हम कंटिन्यूसली उनके ही यहाँ पे जाते हैं. यू गेट द लॉयल्टी. वो बिजनेस को लॉयल्टी मिलती है कस्टमर्स की. दे नो कि पापा दे आर सिंस इतना इयर्स एंड दे आर डूइंग सच अ गुड बिजनेस, so they have a good name and reputation. वही आपका 2-3 महीने का या एक साल से आया हुआ बिजनेस, मेजोरिटी ऑफ देम डोंट इवन नो इट. तो गुडविल क्या है, ये आपकी एक साल में खत्म होने जैसी चीज है. ऑब्वियसली नॉट, राइट. एज एंड हाउ योर बिजनेस इज ग्रोइंग, योर गुडविल इज ऑल्सो उसके साथ ही चलती जा रही है, राइट. तो गुडविल एक नॉन करंट है. एंड अभी आपका नाम, आपका न कमाया हुआ नाम, ये तो आपका है, एसेट है आपका. आपका अच्छा नाम है, दिस कैन नॉट बी योर लायबिलिटी, राइट. You having a good name, good reputation and everything is an advantage thing for you, जिससे आपका revenue generate होगा. Okay, so goodwill is what? Non-current asset. Okay, goodwill is non-current आपका asset. चलो, let's resume to the next question. Which stakeholder group would be most interested in the potential for paying awards and bonus deals? Okay, bonus की spelling wrong है इधर. BO
NUS. ओके, आपकी बिजनेस की क्या पोटेंशियल, लाइक हाउ पोटेंशियल इज योर बिजनेस, क्या क्या स्कोप है आपका बिजनेस का कि आप जो है अवार्ड्स और बोनस दे सको. नाउ हु विल बी द मेजॉरिटीली अफेक्टेड बाय दिस? सबसे ज्यादा कौन हो सकता है? लेंडर्स को लेना देना है नहीं. अगेन, आप क्या करना है बोनस का, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड whomever you want to give the awards वगैरह जिसको देना दो. Our money should be safe and we should be getting our interest on time. That's it. बाकी तुमको जो करना करो. गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेटर्स को भी दे आर गॉट नथिंग टू डू विद द बोनस. हमको हमारा टैक्स दो, स्टोरी खत्म करो. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स, तुम अवार्ड दो नहीं दो, बोनस दो नहीं दो, नॉर्मल तो दो, एथिक्स तो फॉलो करो. दैट इज द मेन पॉइंट. तो इस केस में देन हु इज द वन? मैनेजमेंट. क्यों? मैनेजमेंट को अगर पता है कि हम इतना अवार्ड्स वी कैन गिव, इतना बोनसेस एंड एवरीथिंग वी कैन गिव, डील्स वगैरह, तो दे विल आल्सो हायर देयर एम्प्लॉइज ऑन दैट बेसिस. हमारा क्या पोजीशन है, व्हाट एग्जैक्टली आर वी सपोज टू strike a deal with our employees. हम किस हिसाब से you can motivate them, you can like get the best out of them by giving them this incentives and bonuses and everything. So if the management is knowing about it, that will be the best thing. Correct? आगे बढ़ते हैं. Bills payable, a very important topic, chapter 8 in your books. Okay. You have bills of exchange, उसमें you have bills receivable, bills payable. Bills payable मतलब वो bills जो आपने पे करने हैं. करेक्ट, नॉट आपका बिल वाला बिल. द बिल ऑफ एक्सचेंज जो है आपका, एक जैसे चेक रहता है आपका, वैसे ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट है. इंस्ट्रूमेंट नॉट ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं, पेपर. ओके, डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं उसे. तो दैट बिल पेबल जो है, अभी पेबल मतलब यू आर सपोज टू पे, आपने किसी को पे करना है, तो ऑब्वियसली आपकी लाइबिलिटी है. एंड जनरली वी ऑल्सो सी कि ये जो बिल्स पेबल है, ये 2-3 महीना, 3 महीने का ड्यू डेट, 4 मंथ्स का ड्यू डेट, इससे ज्यादा जनरली होता नहीं. करेक्ट. तो इसलिए करंट आया, इन एसेट एंड लाइबिलिटी, ऑब्वियसली आपको किसी को देना ही, आपकी एसेट नहीं है, दिस इज योर ओविंग समबडी एंड दैट इज योर लाइबिलिटी. सो दैट इज बिल्स पेबल इज व्हाट? करंट लाइबिलिटी. चलो, let's resume to the next question. Question number 9. Choose the appropriate alternative for land and building. जमीन खरीदोगे. ओके, इफ यू आर अ प्रॉपर्टी डीलर, आप ब्रोकर हो, और योर वर्क इज ओनली लैंड खरीदो, लैंड बेचो, लैंड बिल्डिंग लो बेचो. इफ दैट इज योर वर्क, देन ऑब्वियसली वो अगर आपका बिजनेस ही है, तो दैट कम्स इन करंट एसेट. मतलब आपका लैंड 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 ही बिजनेस है. बट इफ यू आर हैविंग अ बिजनेस ऑफ नॉर्मल, लेट्स से एजुकेशनल, आपका कोई कंपनी है. ओके, तो नाउ इफ अन अकेडमी इज हैविंग इट्स लैंड, उन्होंने अपनी बिल्डिंग बना रखी है. ओके, यू हैव 3 ऑफिसेज इन बैंगलोर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अन अकेडमी के. तो इज दैट योर एसेट? एक तो आपका है, तो आपका एसेट है, फर्स्ट थिंग, आपने ओन करी है तो. एंड सेकेंड थिंग, are you building up your whole building वगैरह just to keep it for 6 months, 7 months, less than 12 months? No, right? You are keeping it so that it can stay with you, stay with your business. आप आपका business वहाँ करोगे, अच्छा करो नहीं करो, आपने खरीद रखी है for some use as an investment. तो इन्वेस्टमेंट आप छोटी मोटी नहीं करते हो, इतनी बड़ी बड़ी. अगर अगर आपका रोज में ही आपका अगर वहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि बाबा दे आर वांटिंग, दे आर जस्ट बाइंग इट एंड दे आर गोइंग टू सेल इट, जैसे मेनी ऑफ देम डू ना, गोल्ड वगैरह है तो अभी लिया, दे टेक इट एज अ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, तो देन इट कम्स अंडर करंट एसेट. बट यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग, यू ऑब्वियसली कीप इट फॉर द लॉन्ग टाइम. और इवन द लैंड वेयर यू आर ऑपरेटिंग योर बिजनेस, अगर वो आपका है, यू आर ओनिंग इट, योर बिल्डिंग दैट यू आर इन, अगर आपने वो कंपनीज है, वी ऑल नो. करेक्ट. इन्फोसिस वगैरह सबकी कितनी बड़ी 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 बड़ी, रिलायंस वगैरह की कितनी बड़ी बिल्डिंग्स है. They also need to account for that land and building and everything that they are acquiring. Normal अपने जैसा छोटा छोटा घर थोड़ी है, यार अपना एक एक शॉप थोड़ी है उनका, such big premises. Correct. तो उसके लिए it is very important that they also account for it. ये क्या होगा आपका asset and non current asset, मतलब रोज वाला नहीं है, रोज में बेचना नहीं है, you are going to keep it for more than 12 months. Okay.
चलो अगला प्रश्न over here on your screen. Majority of y'all had a doubt in this. कि Deepti wants to buy a building for her business today. Which of the following is the relevant data for this decision? Okay. Options are similar businesses acquired the required building in 2000 for 10 lakhs. Then building of cost details of 2003, building cost details of 1998. Okay, most relevant देखना है आपको. Okay, similar building cost in August 2005 of 25 lakhs. Now obviously 2003 में क्या है, 98 में क्या है, 2000 क्या है, 2005 का क्या है, all confused position over here. Okay, building की cost, building की cost, building की cost. Now you cannot exactly see, you have no particular year given कि कब होने वाला है भाई साहब ये 2003 का है. आप अभी राइट नाउ कब हो, फ्यूचर आपका कब है, पास्ट कब है, प्रेजेंट कब है, नो इन्फॉर्मेशन एट ऑल गिवन अबाउट इट. यहाँ पे दे हैव जस्ट टोल्ड यू द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स. कॉस्ट क्या है इन डेट्स पे. यहाँ पे दिस ऑप्शन इज हट के व्हाई सिमिलर बिजनेस अक्वायर्ड द रिक्वायर्ड बिल्डिंग इन 2000 फॉर 10 लाख. खरीदा कितने पे है, मार्केट वैल्यू क्या है. ओके वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको अभी खरीदनी है उसको तो. करेक्ट. What is यहाँ पे years से ज़्यादा years are meant for confusing you. Keep that in mind. और Telegram पे students had asked me this doubt कि ma'am we are confused over here what to do. Majority of them went for 2005 because this is the most recent one. यहाँ पे they are confusing with the years. क्योंकि देखो 1998, 2000 building cost, building cost, building cost. There is only one place that is actually telling you कि बाबा इतने में खरीदी. कॉस्ट क्या है इससे ज्यादा व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू राइट नाउ कि आपकी उस बिल्डिंग की अभी मार्केट वैल्यू क्या है जिसपे यू आर गोइंग टू बाय इट. कॉस्ट कुछ भी हो, लेट्स से आई हैव दिस फोन. ओके आई हैव दिस फोन. इसका whatever cost I'm having, you need to make decisions. See, accounting नहीं बोला है, accounting क्या करना है वो नहीं बोला है. The question here is which data will be most relevant to take the decision of buying that building. So building छोड़ दो, take this phone. Now is it important for me to see कि इस phone का कब क्या क्या cost है, 2003 में क्या है, 5 में क्या है वगैरह, लॉन्चिंग क्या था इसका, ये क्या था. उससे ज्यादा व्हाट आई सी की व्हाट आर इट्स फीचर्स, इसके फीचर्स क्या है राइट नाउ, उसकी कंडीशन क्या है. एंड अगर मुझे इसका नहीं पता है तो इसके जैसा किसी ने और मार्केट में कितने में लिया, दैट इज व्हाट मार्केट वैल्यू कम्स आउट ऑफ. राइट, मार्केट में कितना में चल रहा है, मतलब हाउ विल यू गेट दैट मार्केट वैल्यू. कोई और खरीद रहा है, अदर पीपल आर बाइंग इट, ओनली देन यू गेट द मार्केट वैल्यू ऑफ समथिंग. राइट, मार्केट बनता लोगों से ही है. सो व्हाट प्राइस इट इज गेटिंग सोल्ड, टू नो दैट what will you like want to know what others are buying it at, what others are selling this to others at, no, buy and sell कितने पे हो रहा है ये. So that is important for you to look into consideration कि बाबा चलो if this phone let's say इसका price is 22,000. Okay, 22,000 का this phone is, and right now lockdown है, it is being sold right now at 25. तो राइट नाउ सिमिलर फोन किसी ने कितने पे खरीदा है, 25 पे. तो आई नीड टू लुक इनटू दैट कि बाबा चलो ऑल्दो इसका कॉस्ट कुछ भी हो, इट इज बीइंग सोल्ड राइट नाउ एट 25, तो मुझे 25,000 का फंड्स अरेंज करना है. और आई डिसाइड कि बाबा इज टेकिंग दिस फोन करेक्ट और नॉट, 25 लग रहा है. ओके, द मोस्ट रेलेवेंट डेटा एंड डिसीजन दैट यू हैव टू फाइंड आउट हियर इज कि अक्वायर कितने पे हुआ है, मतलब खरीदा कितने पे है, अभी राइट नाउ रेंज क्या चल रही है. ओके, दैट व्हेन यू आर बाइंग डिसीजन लेना है आपको तभी के लिए. अकाउंटिंग के लिए तो सिनेरियो विल बी डिफरेंट, आपने कितने में खरीदा दैट काउंट्स द मोस्ट. ओके चलो, सो सी एवरीथिंग सॉर्टेड टिल हियर, अब तक यहाँ तक एवरीथिंग ऑल क्लियर, क्लिनिक प्लस. ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फटाफट. Primary objective of accounting are what? Obviously, maintaining records of business, calculating profit and losses, making information available to various groups and users जो भी ऊपर थे, management, stakeholders वगैरह, all of them, lenders, government and all of them, उनको दो.
रिकॉर्ड्स मेंटेन करो सो दैट यू कैन सी इट एंड ऑल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. धंधा करना है तो यू शुड नो ना कितना अर्न कर रहे हो एग्जैक्टली, उसमें से प्रॉफिट क्या निकल रहा है, और आर यू इनटू लॉसेस वगैरह क्या है. अभी लॉकडाउन है तो अंडरस्टैंड द पोजीशन ऑफ योर बिजनेस, कहाँ जा रहा है. सो दिस इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ योर बिजनेस, ऑफ योर अकाउंटिंग, राइट. अगर बिजनेस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट, तो यहाँ पे आप उसका ही अगर यू आर डूइंग अकाउंटिंग तो यू शुड हैव ऑल ऑफ दीज, राइट. एंड वी हैव आल्सो स्टडीड देम, एनसीईआरटी पॉइंट्स है ये सब. सो व्हाट यू विल सिलेक्ट, ऑल ऑफ देम आर देयर, सो ऑल ऑफ दीज. कतराए नहीं इसमें कि बाबा सारे कैसे हो सकते हैं. अगर यू आर वेरी श्योर इनफ कि एवरीथिंग इज रेलेवेंट तो गो फॉर ऑल ऑफ दीज. अदरवाइज ट्राई करो कि एक हाथ में भी कुछ गलत दिख रहा है क्या. अगर एक भी गलत है मतलब ऑल ऑफ दीज ऑप्शन भी गया, दैट एक गलत भी गया, एंड देन यू आर लेफ्ट विद अ 50-50 ऑप्शन. दैट इज द स्ट्रेटजी हाउ यू गो फॉर एमसीक्यू. शॉर्ट टिप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेक होल्डर अगेन इन एथिकल और एनवायरमेंट एक्टिविटीज, हमने डिस्कस करा. ओके, मोर देन योर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट तो बाद में देखेगा, उसके पहले लेंडर्स को अगेन कोई लेना देना नहीं. गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड इन योर टैक्स. एथिकल एनवायरमेंट में रहेगा बट उनसे ज्यादा देयर इज वन एक्टिव ग्रुप ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप. देयर होल पॉइंट इज ओनली टू सी कि हाउ यू आर कैरिंग आउट योर बिजनेस एथिकली. आपका एनवायरमेंट जो है आप उसको सेफ तो रख रहे हो या नहीं, CSR एक्टिविटीज ले रहे हो या नहीं, व्हाट यू आर डूइंग एग्जैक्टली. दे आर सो इंटरेस्टेड इन दैट, राइट. Because the whole role is कि आपको देखना है कि whether the businesses are following the social responsibilities or not. So more than the business themselves, more than the government or the lender, the main groups who are highest active on it, so they will be most interested in this information about your firm. Okay, next आपका furniture again like machinery ही. हाँ जी, सेम सिनारियो. असेट है और फर्नीचर भी, यू डोंट बाय इट. टेबल बाय नहीं करते हो एक साल में बेचने के लिए. रोज का काम नहीं है फर्नीचर बेचो फर्नीचर बेचो. अगर रोज का काम है तो देन इट कम्स करंट एसेट में एज ए स्टॉक. बट अगर रोज का काम नहीं है, बिजनेस किसी और चीज का है, ऑब्वियसली जनरल वे में आप फर्नीचर गुड्स लेते हो. फर्नीचर आपका जो है आप परमानेंट रहता है, उसको फर्नीचर तभी बुलाते हो आप आपके घर में या आपके बिजनेस में, व्हेन इट इज गोइंग टू स्टे. ओके, सो एक तो नॉन करंट है, करंट नहीं है, नॉन करंट है, एंड असेट है. यू आर ओनिंग दैट फर्नीचर, सो नॉन करंट असेट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. रिमेंबर द डेफिनेशन वेरी स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में वी हैड डन दैट. recording of data in the books of accounts, then आपको you need to prepare the summaries in the form of like पहले आप data लाते हो book accounts में, then analyze and interpretation of the information, जो information मिली है आपको, then you prepare the summaries of the form of financial statements. सब ये सब तीनों होते रहते हैं. But what is the last point? Communication of the information that you have got to all the users. Correct. जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, you need to communicate it to your users so that they can use it. That is the final step. हाँ जी, because see, let me just tell you, we had this एक मिनट टेलीग्राम ग्रुप ही एकदम swing it is happening. Just give me a second. I had forwarded you all in the telegram group this notes. We had mentioned it over there. See, what is accounting? We had done the definition, the very first slide in your plus course में जो आपका हमने actually accounting जब start किया था, तो I told you all this definition कि the process of identifying, measuring, recording and communicating what required information relating to the economic events of an organization to the interested users of such information. Very first चीज जो definition हमने final वाली देखी थी of accounts, itself it is saying first thing what you do, you will come and identify पहले, then you will measure, then you will record and then you will communicate. इसलिए that one. Again computer software, again आप
रोज के लिए ले रहे हो उसको, बट यू आर नॉट गोइंग टू सेल दैट. अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो इतना महंगा, यू आर यूजिंग इट फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस. चलो टैली वगैरह दे बाय ना, करेक्ट, दे बाय इट. इतना पूरा सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग फॉर अकाउंटिंग वगैरह, ऑल ऑफ दैट. Yeah, let's say you are buying softwares because of the CCTV surveillance for that. या फिर यू नीड टू चेक योर एम्प्लॉय का अटेंडेंस, तो पेरोल वगैरह के लिए अभी एक साल होगा, नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं. सो इट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस. तो अगेन व्हाट एसेट है आपका, यू आर ओनिंग दैट सॉफ्टवेयर. अगर आपने परचेज करा है तो इट्स योर एसेट. एंड इट इज व्हाट, नॉन करंट इन नेचर, तो नॉन करंट एसेट. नेक्स्ट, मोटर व्हीकल्स. Leaving apart from the people who are so crazy about bikes and vehicles and scooties and who keep on changing every now and then with every new model coming up. Other than those, we all use our motor vehicles जो भी business purpose के लिए whatever you're using, you keep it for a long term. The delivery van or whatever you are buying, एक मिनट मतलब एक मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए तो you don't bring it. Your delivery is going to be for a long term basis. So the motor vehicles that you're using for to and fro communicating as well, commutating. So it is obviously आपका asset है. You are owning it, you are buying it for yourself, you are purchasing it for your business. Asset है. And again what? Non-current है. Why? Current नहीं है because apart from the few people who are so interested with the bikes and who are fascinated with that, crazy obsessed. Apart from that, what about the rest? They are all interested in what? Your business rather than the motor vehicle itself. So it will be non-current in nature. Next, who will be interested in your long-term future. That whether the firm has a long-term future or not. Government को क्या है, टैक्स भरो, टॉपिक खत्म करो. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स जितना कर रहे हो एथिकली करो. Now the competition is between vendors and management. Now management will be interested obviously long term, but उससे ज़्यादा who is interested? Lenders. Why? If you are not having a long term future, so what will happen with their money that they are giving to you? If your business is not something that they're seeing growing, how will they get money? How will their funds that they have invested in your business, that they have lended you, will be safe? Correct. So the most like the one who is specifically into this zone, who is all interested in seeing or your long term future, कैसा है? Your lenders. ठीक है? See, I told you starting में it takes time doing the questions. आगे 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 as you go, it gets very फटाफट once you get into the flow of the questions. Next question. Role of accounting. See, we remember we did all the roles of accounting as well. It is a language of the business. It will express itself. Business क्या क्या है. With the help of accounting, you can understand. एक balance sheet दे दिया, एक P&L account दे दिया, trading profit and loss account जो है आपका वो दे दो, cash flow statement दे दो. You are actually getting half the picture of your business. Majority of the picture of your business कि पापा scenario क्या है, how your business is operating, everything, all your expenses, losses, your incomes, your revenues, everything you can see from there. Correct? Next, your information system hai. Obviously, it is providing information to all the users. You are taking the input, you are giving it the input data. It is processing it into the form of journal entries, double entry, posting hota hai, balance sheet, P&L, everything gets out. And the final output that you communicate. So, information system ban gaya hai. Correct? Then service to the users, obviously. It provides this information to all its users वगैरह, this accounting वाला. So तीनों का तीनों है, relevant है तीनों का तीनों. So it goes on all of these. चलो. You all are learning from such a long time and I did not give you all a water break also. No problem. See कितना time हो गया? We have been studying 40-50 minutes. Wow, that's amazing. You didn't feel the need of water break. You were so engrossed in studying. Okay, y'all can have it for 2 minutes right now. Then, and the ones who wanted na, कि पापा, man, we want no water break. बस खत्म करो फटाफट फटाफट फटाफट. You can tap on double tuck 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 you can do. So it will go 10 seconds आगे. Otherwise, if you want it in speed,
तो सीधा गो इन द सेटिंग्स प्लेबैक स्पीड में ऑफ योर यूट्यूब वीडियो एंड सीधा क्लिक ऑन 1.25x 1.5 टाइम्स 1.75 2 टाइम्स how much ever double speed में you need और अगर किसी किसी को ये फास्ट हो रहा है तो you all can obviously go for 0.75 times 0.5 times hello children how are you so वो नहीं हो तो उसके लिए okay that way it will come and agar it is in the 2 times का speed तो मैं already a children how you are yes you all are very very nice ऐसा ऐसा कुछ तो fast 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 करूँगा okay चलो. So now seeing the next question that the which qualitative characteristic of accounting information is reflected when accounting information is clearly presented. Remember the qualitative characteristics, Krur. We had these comparability, relevance, reliability and understandability. Correct. इसमें क्या बोला है अगर your information is clearly presented तो क्या होगा you will be able to understand your financial statements. Correct. तो रिलायबल रेलिवेंट कितना है या कंपेयर कितना कर सकते हो इससे ज्यादा द मोस्ट बेटर पॉइंट दैट यू सी इज इफ यू आर प्रेजेंटिंग इट क्लियरली यू विल बी आल्सो एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली ठीक है नेक्स्ट इन्वेंटरी स्टॉक ऑफ गुड्स दैट यू आर हैविंग इन योर बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इट ऑब्वियसली रोज का स्टॉक इट इज नॉट गोइंग टू विच बिजनेस विल वांट टू कीप इट स्टॉक्स फॉर 10 years नहीं राइट एवरीबडी विल वांट कि चलो स्टॉक फटाफट निकालो ओके सो एक तो आपका एसेट है इट इज योर गुड्स यू हैव दैट यू हैव परचेज स्पेशली फॉर योर बिजनेस सो दैट यू कैन सेल इट एंड जी इन्वेंट्री मतलब आपके पास है यू हैव नॉट सोल्ड इट येट यू विल सेल इट जब सेल आएगा सेल होगा तो आपको उनको देना है वो गुड्स दैट इज अ डिफरेंट थिंग बट राइट नाउ इट इज योर एसेट एंड करंट नेचर में है कुछ महीनों का ही सिलसिला है ये करेक्ट सो इट इज करंट एसेट चलो Now, investment दिया है specifically they are telling for more than 1 year more मतलब non-current and investment है आपने जाके कहीं invest किया है तो that is your asset. So non-current asset. Next question, loan from bank more than 1 year. एक साल से ज़्यादा वाला loan from bank. एक तो आपका it is what non-current in nature and second thing it is what loan from bank किसी से loan लिया है मतलब you have to repay that loan मतलब it is what your liability remember the chart borrowings loans वगैरह so it is your non current liability okay चलो sundry debtors जैसे creditors किया same scenario just वो भी current थे ये भी current है खाली वो liability थी ये asset है okay next question I told you it has happened फटाफट which stakeholder will be most interested in profitability and share performance आपका प्रॉफिटेबिलिटी क्या है आपका क्या है उससे ज्यादा किसको फर्क पड़ेगा कस्टमर को जो करना है करो हमको खाली गुड्स दो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स whatever you do it in an ethical way now the confusion is between lenders and suppliers and creditors lenders मतलब who are just giving you the money but suppliers and creditors is more specific in that ठीक है आपका परफॉर्मेंस कैसा है बेस्ड ऑन दैट दे विल बी एबल टू गेट द मनी सो हु विल बी इंटरेस्टेड या चलो पेटेंट्स कॉपीराइट्स पेटेंट्स एवरीथिंग दैट यू ओन क्या है समथिंग इंटेंजिबल एसेट है ऑल्दो बट इट इज एन एसेट एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर व्हाट नॉन करंट इन नेचर रिमेंबर द चार्ट वो नॉन करंट पेटेंट्स मतलब आपने कोई कॉपीराइट कोका कोला बनाया उसका इफ दे आर हैविंग दिस पेटेंट द रेसिपी दैट दे हैव सोल्यूशन फॉर इट तो वो के एक साल के अंदर थोड़ी खत्म होगा कोका कोला का ड्रिंक्स आर कमिंग फ्रॉम व्हेन दैट पेटेंट इज आल्सो सिंस कब का मोर देन 12 months नॉन करंट इन नेचर यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन कॉमन फॉर्मेट किसको हेल्प करेगा व्हाट विल इट प्रमोट in reporting comparability because if you are using common unit common measurement so you will be able to what compare things right comparison करोगे कैसा you cannot compare like you know two horses with five dogs difference है थोड़ा right और like ऐसा मतलब you can you compare 1 liter with 600 grams कुछ कुछ अटपटा है राइट
or if I say energy is 1 kilojoule, okay, and the water in that ocean is what? How many million liters or pounds or whatever? ऐसा कुछ है, gallons, okay. तो ऐसे में can I bring any connection? Normal public, can you all bring any comparability over here? बोलोगे अकाउंट से लेना देना क्या है इनका? Exactly. So you need what? Common measurement, you need common format. फिर क्या होगा? How you will be able to compare them. So that is the most important aspect. AC, air conditioner. You won't take it for 2-3 months. So asset है आपका and non-current in nature. Loose tools, the ones that you use casually like in your business. Okay. तो ये स्टॉक आउट ऑब्वियसली होता रहता है. यू लाइक यूज देम फ्रीक्वेंटली, थोड़ा टाइम के लिए होता है. सो करंट है एंड एसेट है आपका. ओके. चलो नेक्स्ट. Which stakeholder group will be most interested? The firm carry on like the firm to carry on providing a service or producing a product. Highest who is interested? Your customer. भाई किसी में तो किसी चीज में तो interested है ना ये. Your product. The customer is most related to that. So सबसे ज्यादा कौन? Customer. Types of accounting. The very last question. Which of the following are your types of accounting? Public. We had discussed this. Cost accounting, financial accounting, management accounting, three main types we had done. All of them are given here. So what will you select? All of these. All of these. So public, I feel कि आप लोगों ने enjoy करा होगा session. You would have got done with all your doubts and all your questions related to Mega Quiz, and the ones who have not yet subscribed to our Plus platform, like who are not yet on our batch course, obviously उनको भी समझ में आ गया होगा what fun they are missing out on. कि these quizzes are taken live. उसके बाद में you also get the winners and everybody. सबके नाम भी announce होते हैं. Let me just check if I can show you all. See, यहाँ पे नीचे नीचे आपको दिख रहा होगा, correct? I'm scrolling. First toppers का नहीं दिखेगा because probably that might have got hidden with. नहीं hidden नहीं होगा. You all can see Krati, Kanish, Nilesh. Okay, business studies का भी आ गए. And right now while I'm recording this, 12th standards will all obviously be giving their tests over there. तो उनके भी चल रहे accounts and business के. So do not worry at all, public. I'm already there. I'm your educator. See, I'll show you my profile right here. This you cannot do. This we educators only can do. आपको तो खाली you need to type at like unacademy.com/@Dhwani. And guys, all new freshly brewed content is coming up for you. See, blue tick verified educator who very rare teachers get this on this platform. Okay. CBSE में you will always find the educators जो अलग अलग कैटेगरी से आ रहे हैं, मतलब बड़े बड़े कैटेगरी से आ रहे हैं. Either they are having a blue tick and very few people are there who have earned this from here. I'm one educator over here who's a top educator. You can see. Hanji. So when you go over here, CBSE class 11 select kar do. See the watch minutes. We are very soon going to approach for 4 lakh watch minutes. Hanji. And see the batch courses that we are running for you. ये 12th की बैच है. लेट्स क्रैक कॉमर्स. लेट्स क्रैक कॉमर्स एक 11th की है, एक 12th की है. ओके. दोनों आपके लिए है. Just click on the relevant one for you and go for it. Then we also conduct various special classes. I also teach for CBSE class 11, class 12, and I also teach for CA Foundation. See, logical reasoning. सब पढ़ाती हूँ मैं. सबकी स्पेशल क्लासेस होती है, यूट्यूब क्लासेस होती है. These are your courses. फ्री कोर्सेज पहले के भी अवेलेबल है ही. बैच के जो भी इंडिविजुअल कोर्सेज आपको देखने हैं तो ये देखो, ये स्टार्ट होने वाले हैं आपके कोर्सेज 11th स्टैंडर्ड के, क्लास 11 के रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस वाला पे, द नेक्स्ट 2 चैप्टर्स पे, एंड फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस में अगला वाला पॉइंट वी आर गोइंग टू टेक अप. फर्स्ट चैप्टर नहीं, आपका कौन सा फर्स्ट चैप्टर इज ऑलरेडी डन देयर. पूरा लंबा चौड़ा हिस्ट्री वाला एंड द होल बिजनेस वाला होल थिंग वी आर ऑलरेडी डन विद. एंड डू नॉट वरी इफ यू हैवंट जॉइंड इट येट, देयर इज नो इशू एब्सोल्युटली फॉर दैट. You can just watch the recordings. हमेशा available है. You can ask the doubts live. So that is the most beneficial aspect for you all. Okay. And we cover the whole syllabus. We will be getting done with that till December. Let me just show you all if you can see the preview over here.
क्लास 12 की है ये. सी एवरीथिंग इज लिस्टेड. पूरा शेड्यूल मिल जाता है आपको बैच का कि ओके एंड आई विल बी टेकिंग अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज, सो देयर आर अदर प्रोफेसर्स आल्सो विल बी टेकिंग अप ऑल द कोर्सेज फॉर यू. एंड सी मेगा क्विज एंड फर्स्ट जून का भी सब शेड्यूल इज ऑल ओवर योर यू कंप्लीट शेड्यूल. ओके, ये पूरा चीज़ है. सी द प्रीव्यू, यू कैन सी. इंट्रोड्यूस भी मैंने ही करा है. आई आई गेस पीसी पे शायद नहीं देख पाओगे. यू कैन सी इट इन द मोबाइल विंडो. या यू कैन सी. Oh, Hello learners, welcome to Unacademy I don't know if Plus. you're able to see my We computer all screens know or how not, but difficult class I've 11 introduced this physics whole batch is. for y'all. Welcome to Unacademy Plus. Unacademy Plus. We all know how Yeah, this is difficult on class 11 0.75x, can so okay. get if in case Okay. you don't know the Normal mein basics. dekho, yeah. That is the Accountancy, business 0.75 mein how do studies, you see and how do economics, you see it in the so normal one? multiple I'm going and subjects speaking out and we yet everything don't know about the what batch they and how are do you all about. understand about it. Especially Sab if you kuch are a bata rahe. commerce student, this will be completely Okay, I new to don't know you. if you're able to hear So this or why are not, we but worried? it is very I've confusing got to me. something really So great जाके and go on special for you Unacademy and watch this that can full. release your Okay, worry watch this and full will give you session. a I've solution introduced over here to all that I can show you कैसे here. कैसे Any क्या क्या tensions, करना है, stress, how and everything about the complete. batch courses, and the most important thing, guys, when you're taking the subscription, the best one I yet tell you, 6 months ka and 12 months ka is the best one to go for. Best deal है subscription की. I'll show for class 10, 11th and 12th तो मैं खुद subscribe हुई. चलो for example if I'm showing you class 10th का, तो get subscription पे click करो. ओके, ये देखो 6 मंथ का इज द मोस्ट बेनिफिशियल. 10,000 में आपका पूरा 6 मंथ आ रहा है, उससे भी ज्यादा 12,500 में तो 12 मंथ्स पूरा का पूरा आ रहा है. नाउ सी द मैजिक ध्वनि 10 कोड अप्लाई करो. DHWANI10 अप्लाई दिस कोड एंड यू गेट सीधा अप्लाई करो स्ट्रेट कट. सी प्राइजेस ऑल रिड्यूस्ड. 11,250 में आपका पूरा का पूरा मतलब ऑलमोस्ट 938 पर मंथ में आपका काम इज गेटिंग डन. ओके, तो जब भी you are subscribing for Plush, don't forget to use the code DHWANI10 and get the discount, 10% discount straight cut flat. No one will ask you any question. Just write ma'am का name Dhwani DHWANI10 and get that 10% का discount straight forward and come in my team and let me see you all. And अगर funds नहीं है तो you can also go for the 1 month and 3 month वाला plans too. कोई दिक्कत नहीं है. आई वोंट एम्फोसाइज कि भाई 12 ही लो, 6 मंथ का ही लो, जो अफोर्ड होता है लो, बट लो. आओ एंड पढ़ो. पढ़ोगे नहीं सीखेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया. पीएनजी शिक्षा. ओके, so see you everybody very soon with the next class that we have. Until then, let's sign off. Bye bye, take care and see you very soon. Bye.